Hello everyone. I will not get your much time. Just please be patient with me. Okay, let me introduce myself. My name is Tawheed Ali. I am working as a tech lead and senior Android developer in Saigon Technology, Singapore. Right now I'm in Pakistan for some vacations, and fortunately Salman contacted me for this session, and I am very thankful for the GDG and to the Salman as well. I think he's not available here. So today our session is about Android development. Is there anyone who is familiar with the Android development? Oh, nice. So native development or Flutter? Ah, that's good. Because right now everywhere is only Flutter developers. You can find many of them. Okay, so today we will talk about how to implement the Google Maps in Android using the Jetpack Compose, because you know nowadays Jetpack Compose is getting so much popularity among the developers, but not as much as the Flutter developers. But yeah, I guess in the meantime we will also tackle the Flutter as well. Although Flutter's community is growing much better than the Compose, but yeah, in coming days we will also be in a good numbers. Okay, so first of all, to do anything, we need to ask a question to ourselves that why we need this, why we need to implement Google Map in the Android by using Jetpack Compose or anything, or by the old pattern as well. So right now, you all are here. I think many of you, I think, use the Google Map to reach here. Like me, I'm coming from Islamabad. I use a lot of Google Map, directions. Sometimes I forgot the directions and many of other stuff. And you all are using so many things like Food Panda, Zomato, Swiggy, and any other stuff who was using the Google API. So I don't think right now or nowadays we cannot make our anything in our daily life without the Google, especially the Maps API. Everything is connected with the Google Maps API, like Food Panda, or you can say any of your delivery websites like Cheesiest as well, and many other startups are using the Google Maps API. So if we say like Google Maps API, what they give us, like location search, real-time traffic updates, like sometime we are switching the routes depending on the traffic updates. So we need to use the Google API. And business integration, geocoding, these are the things I guess you all are familiar with this. So if we go above, yeah, first of all Uber, then Lyft. Actually, it's I get these examples from the Singapore environment. Sorry for this, but I make this presentation a little before, so that's why. Okay, so Zomato is kind of Food Panda delivery app. So we are, in Pakistan we are using like Zomato, and Swiggy is also app which is using the real-time location using the Google Maps API. Okay, so to handling all of these apps, what is the ultimate solution for us is the Google Map API. We need to integrate this API in our app to find or to calculate the real-time data of the user of your any business integrity who are dealing with the real-time location sharing and data integrity. Okay, so let me come to the major part, how we can start. Actually, this is a practical code lab, you can say. So I can only give you a demo, sorry. I can only give you a demo on the on the video purpose, because we cannot implement on our laptops because Android Studio installing it's a hassle. So I will just tell you, okay. In Android Studio we have two parts. First of all, we have code part, and the other thing is we made their base as well. Like for example, we have built a Gradle file to which we tell the program what you need to do. Okay, so we have some libraries which is already made by the Google team, so you can implement this as well in the build.gradle file. I guess let me change a little about this topic. Actually इसको short कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है. अच्छा, अब जो आप लोग जिस जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग पर्सन है, जो भी हैं, तो अब होता है ऐसा है ना कि जब भी आप एक न्यू टेक की तरफ शिफ्ट होते हैं ना, तो आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स पता होने चाहिए. सिंपल इज़ दैट. मैं इसको बहुत शॉर्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ऑडियंस का ना. अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे हम पहले एंड्रॉइड 4 यूज़ करते थे, फिर 6 पे ग्रेजुअली शिफ्ट हुए, देन अब हम एंड्रॉइड 14 और 15 तक आ गए हैं. तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे फीचर्स अपडेट हो रहे हैं ना, तो एंड्रॉइड के अंदर भी जो कोड का जो सिनेरियो है वो भी चेंज होता जा रहा है. ठीक है, पहले क्या होता था कि एंड्रॉइड आपसे जितनी भी
परमिशंस लेता था वो बैकएंड पे खुद से ले लेता था, वो आपको नहीं बताता था कि मुझे ये वाली परमिशन भी चाहिए, मुझे ये वाली परमिशन भी चाहिए, और आपको पता भी नहीं चलता था कि फेसबुक जो है वो आपसे 34 तरह की जो है ना वो परमिशंस ले रहा होता है। सो इट्स अ बिट हैसल। बट राइट नाउ अगर एक डेवलपर एक कोड कर रहा है तो वो लाजमी तौर पे आपको जो है वो वेरीफाई करेगा कि वो जितनी भी तरह की परमिशन वो आपके कोड बेस में ले रहा है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये क्यों है? इससे एक तो यूज़र की जो सिक्योरिटी है वो इन डिमांड उसी टाइम पे जो है वो रिकग्नाइज हो रही होती है कि किसी भी तरह का ब्रीच जो है ना सिक्योरिटी का नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें एडवांस हो गई हैं। अच्छा, अब पहले क्या होता था कि जब हम गूगल मैप्स को इंटीग्रेट करते थे ऐप्स के अंदर तो वो एक बहुत बड़ी हैसल होती थी। मतलब आप एक एक्सएमएल पार्ट उसका अलग से बनाते थे जो कि फ्रंट एंड कहते थे, जिसको हम एक बैक एंड का पार्ट होता था जिसको हम अलग से जो है ना वो मेंटेन कर रहे होते थे। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि हमें दो फाइल्स को एट सेम टाइम मैनेज करना पड़ रहा होता था। अब गूगल ने जो जेटपैक इंट्रोड्यूस करवाया है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसी की यूआई को विद द सेम टाइम एक ही फाइल के अंदर मैनेज कर सकते हैं विद द कोड बेस। अब जैसे यहाँ पर खैर एक मैंने कंपोजेबल फंक्शन बनाया हुआ कंपोज मैप डेमो के नाम से, सिंगापुर की ही लोकेशन मैंने इसमें डाल दी है टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसमें क्या है जी, ये जो गूगल मैप का एक कंपोजेबल फंक्शन है, सॉरी गूगल मैप का जो कंपोजेबल फंक्शन है बेसिकली यही आपका एक मैप ड्रॉ कर रहा है। एक्चुअली कंपोज के साथ जो इस पूरे सिनेरियो को बताने का पर्पज़ है वो यही है कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। आपको यूआई अलहदा से मेंटेन नहीं करना पड़ता, आपको यूआई अलहदा से जो है ना फ्रंट एंड नहीं बनाना पड़ता। जैसे वेब के अकॉर्डिंगली सबको नॉलेज होगा कि एक फ्रंट एंड होता है, एक हमारा बैक एंड होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही कोड बेस के अंदर आप एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ अपना ऐप जो है वो कोई भी अकम्प्लिश कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बस हमने यहाँ पर जो है वो लेटीट्यूड दिया है, लॉन्गिट्यूड दिया है, बाकी सब कुछ इसका ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉड्यूल है जिसके अंदर वो इस गूगल मैप के थ्रू कंपोजेबल फंक्शन के थ्रू वो जो है वो मैप भी ड्रॉ कर रहा है। इसी के अंदर हम मार्कर का एक ले रहे हैं। लेट से आप जैसे कि देख सकते हैं उधर साथ जो एक मैप बना हुआ है इट्स ब्लरी, लेकिन ये सिंगापुर लिखा हुआ है और सिंगापुर के ऊपर एक मार्कर आया हुआ है। तो ये मार्कर कौन हैंडल कर रहा है? सिर्फ ये 3 लाइन्स मार्कर। स्टेट में मैंने क्या दिया हुआ उसको, सिंगापुर का जो मैंने ऊपर एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया हुआ है इसी को मैंने पास ऑन किया हुआ है, जो कि वो क्या ले रहा है उसकी एज अ पोजीशन ले रहा है पैरामीटर के अंदर, और नीचे उसका टाइटल सिंगापुर, जो कि आप अगर इसमें देखें यूआई में तो वहाँ पर भी सिंगापुर जो है वो शो हो रहा है। इसी तरीके से स्निपेट है, खैर वो मार्कर इन सिंगापुर, वो एक बैकग्राउंड टेक्स्ट आप उसको कह सकते हैं, उस तरीके से हम जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ओनली विद द हेल्प ऑफ 3 लाइन्स हमने एक पूरा यूआई ड्रॉ कर लिया है जिससे कि हम उसको मेंटेन भी कर सकते हैं और हम उसको शो भी कर सकते हैं अपने ऐप के अंदर। इसी तरीके से अगर आप और भी पैरामीटर्स डालना चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि आइकन जो है वो मैं अपनी कुछ पसंद का या उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आपको रेड आइकन नहीं पसंद आ रहा, तो आप और भी पैरामीटर्स इसमें जो है ना ऐड कर सकते हैं। ये कोड्स नहीं पड़े उसका, वो मैंने ऐड ऑन कर दिया था। अच्छा, ये लास्ट लाइन है इसकी आइकन, और मोस्ट ऑफ द पीपल आपको पैरामीटर्स का पता होगा, कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें पैरामीटर्स हम पास करवा रहे होते हैं, हर पैरामीटर का एक अलग फंक्शन होता है वो जो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो खैर हम उसको जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, और इसी तरह फिर इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं मार्कर्स के। नहीं, इसका जो कंपाइलर होता है आजकल, अभी तो जो इसकी न्यू अपडेट आई है उसमें तो वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी इसके कंपोजेबल फंक्शंस हैं ना उनको डायरेक्टली मेंटेन कर रहा होता है कंपाइलर। उन्होंने उसके अगेंस्ट एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, एक विजिट, यू कैन से एक विजिट रखा हुआ है लाइक फ्लटर, वो उसी को जो है ना वो इनिशिएट करवाते रहते हैं आपके पिक्सल्स पे। तो उसके लेकिन कंपोज के अंदर आप एक्सएमएल यूज़ नहीं करते हैं। कंपोज के अंदर एक ही फाइल है। पहले क्या होता था, 2 फाइल्स होती थी, एक फ्रंट एंड आपका बनाता था, एक बैक एंड बना रहा होता था। अब कंपोज के अंदर ये जेटपैक कंपोज में आप बेसिकली अब क्या कर रहे हैं कि एक ही फाइल होती है जिसको आप मेंटेन कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर आप अपने कंपोजेबल फंक्शंस बनाते हैं और उन्हीं को जो है ना ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये इसीलिए एक एडवांस्ड आप कह सकते हैं कि मेथोडोलॉजी है जो कि आजकल सभी जगह यूज़ हो रही है। सो आपको बस एक हैसल से बचाने के लिए कि आप यही, जैसे फ्लटर में आपने देखा होगा विजिट्स आप ड्रॉप कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें कंपोजेबल्स होते हैं, वहाँ पे विजिट्स होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसमें इसी तरह बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, जैसे स्टेट है कि आपने मार्केट स्टेट जो है वो शो करवानी है, जैसे हम सिंगापुर शो करवा रहे थे, जिन देन टाइटल है, फिर ड्रैगेबल अगर बूलियन में आपने फॉल्स किया हुआ है तो जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आप येंगो जब करवाते हैं ऑर्डर, तो आप अपना जो स्नाइपर है उसको चेंज कर रहे होते हैं उसका मार्कर कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ या मैं कहीं और हूँ, तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा तो ड्रैग हो जाएगा, फॉल्स कर दूंगा तो नहीं होगा। यानी कि आप पूरी येंगो ऐप जो है वो इन्हीं के थ्रू भी बना सकते हैं और बहुत ईजीली बना सकते हैं। पूरी तो नहीं बनेगी खैर, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे। अच्छा, और इसके बाद रोटेशन होती है, देन आइकन है इसके अंदर, पैरामीटर्स, एंकर, और फिर ऑन क्लिक है।
ऑन क्लिक में ये होता है कि आप मार्केट से क्या काम लेना चाहते हैं कि मार्केट के क्लिक पे आप कुछ मैसेज शो करवाना चाहते हैं कि इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, या अगर लॉन्ग प्रेस, और आप इसके जो है ना वो क्लिक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं।